Hey, hi, hello, and welcome. Welcome to today's session, which I'll be covering a topic of a Black Book project, which is very, very important for last year students and all those who are planning to complete their Black Book project for the academics. So, as you can see on the right side, once you finish up your project, you have to bound that properly and with a golden embossing. This is how your final project would look like once you finish that. But obviously, that is the final stage. So let's start from the very initialization, how you can start, how you can choose the topic, what are the things you need to do, what are the things you not, do's and don'ts, which I'll be sharing in detail. So very first step about this is first specifically talking in terms of as a TY-BMS student. As a TY-BMS student, if you see in 5th sem, you had 2 common subjects, then 4 specialization, marketing, finance, and HR respectively. And in 6th sem, again, you have 2 common subjects and 4 specialization. First, operation research, that itself is a very difficult subject, which you need to be very careful of. And then second, this project work, which I'll be sharing with you in detail, how you can go about the things of finishing this project work. So why I'm sharing this, because it's very important for students to understand the why part. Because many of the times students might feel this is not important, this is maybe optional, this is least important. No, it is a common subject. It means it is more important than a specialization subject. So that is why you should be very focused and you should take it very seriously, because this grade will reflect in your final mark sheet. So that is why it becomes more and more important. So this was for TY-BMS, and same goes for banking and insurance students also. Like in 5th sem, they had 2 common subjects, and then in 6th sem again, 1 common subject is central banking, 1 project work, and rest of the subjects offered by college. Again, in banking and insurance students, they are more specific in banking and insurance. They need to have their project within that area, within that sector only. They cannot go for some other area or other sector. So that is why again it becomes important for banking and insurance students, and even for other finance students also, whether it is financial market or whether it's accounting and finance. Now, first, very basics, where students should understand right from the basics what project they are going to do. As I told you why it is important, now how you can go about the things. As you can see, many of the students don't get that it is divided in 2 modes, this project work. First mode is project work based on research methodology in the study area, which is minimum 80 to 100 pages. And second is project work based on internship in the study area, that is minimum 50 pages. So these are the 2 options you have, which you can opt for. So always majority of the students opt for first option, that is project work based on research methodology in the study area. Again, majority, I'm saying approx maybe 70 to 80% student or 65 to 75 students percent of students opt for first option. Second option, you need to have internship, means you should be working in some of the company and you should have proper certificates and all, then only your project will be validated. So in case if you are planning for a second one, then I will be making a separate video for that. But this video is exclusive for first mode of method, that is work based on research methodology, because majority of them go for that. And again, as you can see, it should be around 80 to 100 pages. So it's a huge task which needs to be completed. Okay, so first I hope you got a clear idea which kind of project you'll be doing, whether you'll be doing based on research methodology or you are doing based on internship. As I told, if it's on internship, you should have a proper documents along with the certificate. They are working in the particular company for last 3 to 6 months in last academic year and so on. Okay. So as I told you about the first, that is the first mode which we'll be covering now. So basic guidelines. Now this guidelines is as per the University of Mumbai PDF, which is being shared. Again, I'll be sharing with you all once the video ends. So I'll be showing you that. So whatever I'm sharing now, it is as per that guidelines. The first is about the topic. It becomes very important. Your topic should be the area of elective course. So I have a separate slide for that where I'll be discussing in detail what topic and how you can choose a topic. Okay. Second, again, very you can say important aspect, the teacher guide, where every student's under the supervision of a teacher guide. So students, please, it's a kind of request
until unless you get your topic approved from your teacher guide, you cannot move ahead. And if you are not contacted with your teacher guide, you cannot do your project ahead, because without teacher guide, if you are completing your project, that won't be considered as actual project. So it is very, very important that you should have your teacher guide, and according to teacher guide, you should move ahead with your project. Then again, with the consultation of teacher guide only, you need to approve first. If your teacher guide doesn't approve your title, then you cannot move ahead. The very first basic step is you need to approve your topic from your teacher guide, then only you can move ahead. And that university or college allots guiding teacher to the students. So please make sure you are in touch with your teacher guide whenever you are planning to go for a completion of a project. If you are not included your teacher guide in completion of a project, then that project won't be considered as a valid. That is the importance of a teacher guide. So please, very first basic step, even before choosing a topic, is to have a talk with your teacher guide and move accordingly. Okay, so that is the role of a teacher guide. Then this is again as per the PDF, it is very clearly mentioned when you will be completing or when you will be doing your project. These are the basic guidelines that it should be Times New Roman, font size should be 12 for the whole content and 14 for the title. If you have to highlight something, then line spacing is 1.5, 1 for table work, paper size A4, because afterwards you need to get the print of that. Then margin is left 1.5, up, down, right is 1. As I already told you, it should be a bounded project with the proper golden embossing and all, which will be done once your project is approved and ready. And project report should be around 80 to 100 pages. Then there are certain other, you can say, other part also, like your format is a certificate, then index, then in certificates, there's acknowledgement, a declaration that I'll be showing you afterwards. But now, as we are very focused on how you're starting a topic and how you can move ahead. So first is in terms of topic selection. So this is the very question where many of the students don't understand what topic they can choose from. So the first very basic part is when you're selecting a topic for your project, which would be around 80 to 100 page. So it is not any project like which is around 7 to 8 page. You can do any topic and find out and straight away. First, you need to identify whatever is your area of interest. Means जो टॉपिक तुम्हें पसंद है या तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो उसके बारे में, वो टॉपिक होना चाहिए, या फिर लेटेस्ट टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक होना चाहिए, या फिर तुम्हें पहले से उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, प्रायर नॉलेज. आइदर ऑफ वे यू कैन डू दैट. सो वॉट एवर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज, जैसे कि अभी मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके ऊपर मुझे करना है, फाइन. तो उसके ऊपर करना है तो उसमें एग्जैक्टली क्या करना है. एंड वन मोर थिंग व्हाइल choosing a topic which you need to be very careful is area of elective course. It is as per the guidelines, it is preferred कि marketing students will do project on marketing, finance will take a finance subject, finance topic, and HR will take a HR topic. Because what happens, it is okay even if a marketing students may take a finance topic, but it doesn't make sense. Why it doesn't make sense? Because suppose you are doing marketing from SY specialization, then TY also, and this is your 6th sem subject. So it won't make sense if you take any of the finance topic. So that is why it is very important that you should choose as per your elective course. So marketing students should do marketing, finance and HR topic. Okay. And similarly goes with the banking and insurance students, BFM students and BAP students. Whatever topic it would be, it should be within your guidelines of your elective course. So now topic selection. This is a very, very difficult question, how you can get to your topic. So this is a certain guideline which might help you. So let's take an example. Suppose you are a marketing specialist student. ठीक है, तो अभी मैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट स्टूडेंट हूँ, तो अभी मैं किस पे टॉपिक ले सकता हूँ और क्या टॉपिक कैसे फ्रेम कर सकता हूँ. तो सबसे पहले तो एरियाज टू एक्सप्लोर, मतलब एज अ मार्केटिंग स्टूडेंट एसवाई और टीवाई तक तुमने कितने टॉपिक्स कवर किए हैं, कौन से सब्जेक्ट के हैं, उसमें से कौन से एरियाज है. अभी ये जस्ट एग्जांपल है, ऐसे देखा जाए तो और बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐड हो सकते हैं. तो जैसे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, ब्रांड मैनेजमेंट हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, इंटरनेट मार्केटिंग हो गया. अभी सपोज मुझे करना है इंटरनेट मार्केटिंग पे या डिजिटल मार्केटिंग पे, ठीक है, तो मैंने एक कोर एरिया फिक्स कर लिया, ठीक है, अभी डिजिटल मार्केटिंग, बट यही टॉपिक नहीं हो सकता डिजिटल मार्केटिंग. दिस इज वेरी इनकम्प्लीट टॉपिक और इस पे 80-100 पेजेस करना इज वेरी डिफिकल्ट. तो तुम्हें इनकम्प्लीट टॉपिक नहीं करना है, तुम्हें कंप्लीट टॉपिक करना है, और वो टॉपिक को तुम लोग को रिलेट करना है किसके साथ. Need to relate your topic with either sector, industry, service, then organization, firm, brand,
and vicinity means the area you live or nearby. क्योंकि तुम लोग vicinity मेंशन करने से क्या होता है, डेटा कलेक्शन में आसानी होता है, क्योंकि तुम जो भी टॉपिक कर रहे हो वो पूरे इंडिया के लिए नहीं कर रहे हो, एक पर्टिकुलर लोगों के लिए कर रहे हो, तो तुम जोग्राफिकली तुम्हें वो चूज करना चाहिए. जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ. सपोज अभी इसमें से मैंने चूज किया कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. कोई भी एक चूज कर सकता था, बट मैंने अभी एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ मैंने चूज किया कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. फाइन. सो आई हैव नाउ आइडेंटिफाइड, ठीक है, आई नीड टू डू समथिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, बट व्हाट? तो एज आई टोल्ड यू नीड टू रिलेट विद सम सेक्टर और सर्विस. तो अभी मैंने रिसेंटली आई रेड अ न्यूज एंड आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट राइड शेयरिंग सर्विस. सो आई वाज थिंकिंग, अरे व्हाट इज दिस राइड शेयरिंग सर्विस? तो अभी मैंने थोड़ा बहुत सोचा और मुझे लगा ये टॉपिक अच्छा हो सकता है. तो फिर अभी मैंने ये दो चीज को कंबाइन कर दिया. दैट इज अ स्टडी ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ऑफ राइड शेयरिंग सर्विस. बट अगेन ये अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ. सी, रिमेंबर, व्हाइल चूजिंग अ टॉपिक यू शुड हैव अ डेफिनेट एंड अ कंप्लीट टॉपिक. ऐसा इनकम्प्लीट और कंप्लीट टॉपिक नहीं रहेगा तो आगे जाके प्रॉब्लम होता है. तो ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी भी और अच्छा हो सकता है और आगे बढ़ सकता है. जैसे कि अभी तक मैंने क्या टॉपिक आइडेंटिफाई किया है, स्टडी ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ऑफ राइड शेयरिंग सर्विस. ठीक है, अभी राइड शेयरिंग सर्विस पे तो पूरे वर्ल्ड में भी है, पूरे इंडिया में भी है. तो मैं पूरे वर्ल्ड या पूरे इंडिया का तो नहीं कर सकता, उतना टाइम भी नहीं है और उतना डेटा कलेक्शन पॉसिबल भी नहीं है. तो अभी मैं यूज करता हूँ विसिनिटी. विसिनिटी इज सराउंडिंग द एरिया वेयर आई लिव बाय. सो सपोज आई लिव इन थाने. तो मेरा टॉपिक अभी और कैसे फ्रेम हो जाएगा, स्टडी ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ऑफ राइड शेयरिंग सर्विसेज इन थाने सिटी. अभी बोलने के लिए ये टॉपिक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही, ये भी अच्छा ही है. बट जैसे मैं बोला, जितना डिफाइन करोगे और जितना स्पेसिफिक रहोगे उतना तुम लोग को आगे जाके अच्छा रहेगा. क्योंकि गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे, ऐसे बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे, बट स्पेसिफिक और डेफिनेट जितना होगे उतना ओरिजिनल और उतना अच्छा लगेगा. फिर जब तुम वाइवा भी दोगे तो एक्सटर्नल एग्जामिनर भी और तुम्हारा प्रोजेक्ट गाइड भी बोलेगा कि कुछ तो मेहनत की और एक अच्छा टॉपिक लाया. तो ठीक है, तो सर्विस इन थाने सिटी. बट मैं अभी उसमें और ऐड कर सकता हूँ. क्या ऐड कर सकता हूँ? मे बी कोई ब्रांड नेम, राइड शेयरिंग सर्विस में कोई भी कंपनी का नाम में यूज कर सकता हूँ. तो मेरा फाइनल टॉपिक ऐसा फ्रेम हो जाएगा जब मैं सब इसको कोलैबोरेट करूंगा. तो अ स्टडी ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ऑफ राइड शेयरिंग सर्विसेज इन थाने सिटी with reference to Uber मोबाइल ऐप. तो अभी मैंने कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी डाल दिया, राइड शेयरिंग सर्विस भी बोल दिया, थाने एरिया का कर रहा हूँ और कौन से ब्रांड के साथ कर रहा हूँ, उबेर के साथ कर रहा हूँ. तो ये मेरा फाइनल टॉपिक बहुत स्पेसिफिक है और इस पे अभी मैं काम करना चालू कर सकता हूँ. So again, as I said, before working or before moving ahead, it's very, very critical. Whatever topic you are choosing, you please first confirm from your guide, then only move ahead. तो बहुत बार बच्चे खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं, कुछ भी ढूंढ के लेके आते हैं और फिर बाद में प्रोजेक्ट गाइड फिर जब बताते तो शायद रिजेक्ट हो जाता है. तो उससे अच्छा तुम पहले डेफिनेट करो, स्पेसिफिक करो. और हमेशा याद रखना, दिस इज अ रिसर्च वर्क. तो ये वर्किंग टाइटल रहेगा. मतलब अभी एंड में यही फिक्स हो गया ऐसे नहीं, इसमें थोड़े चेंजेस हो सकते हैं. मतलब कभी कभी हो सकता है कि थाने सिटी नहीं है तो कल्याण डोंबिवली डाल दिया, उबेर नहीं है ओला डाल दिया, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन नहीं है मे बी बिहेवियर हो गया. तो कुछ भी ऐसा वर्किंग टाइटल होना चाहिए तुम्हारा जो तुम्हारे गाइड के हिसाब से, या फिर कभी कभी तुम्हें जो डेटा मिलता है उसके हिसाब से भी तुम चेंज कर सकते हो. तो इसलिए हमेशा याद रखना वर्किंग टाइटल है. हम लोग कोई कॉपी पेस्ट नहीं करे जो रेडीमेड मैंने डाल दिया और मुझे मिल गया. तो इट इज योर वर्किंग टाइटल. अगर गाइड से अप्रूव होता है, तुम्हें डेटा मिलता है तो ये फाइनल रहेगा. बट अगर एंड में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी करना पड़ेगा या थोड़ा बहुत चेंजेस, पूरा टॉपिक तो चेंज नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करना है तो वो फाइनली चेंज हो सकता है with after interacting with the guide. तो अभी ये हो गया मार्केटिंग स्टूडेंट. सो सपोज अभी मैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस स्टूडेंट हूँ, तो एरियाज टू एक्सप्लोर. तो अभी ऑब्वियसली मेरा ऑलरेडी लिमिटेड हो जाता है क्योंकि मुझे बैंकिंग और इंश्योरेंस के इस पे ही करना है मुझे. तो जैसे अभी मुझे क्या क्या ऑप्शंस है, आईटी इन बैंकिंग, role of technology in banking या role of technology in insurance sector, women executives in any of the bank, comparative study of any two banks या comparative study of any two insurance company, HR practices in bank, training and development, या फिर e-banking in India, या फिर customer relationship management in banking. तो ये बहुत सारे एरियाज है. अभी इसमें से सेम हम लोग वो रूल अप्लाई करेंगे कि हम लोग को कोई भी इंडस्ट्री सेक्टर सर्विस. बट अभी एज अ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस स्टूडेंट तुम्हें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में स्पेसिफिक रहना है, तो उसके ऊपर ही रहेगा. तो अभी मैंने इसमें से कर लिया सीआरएम, मुझे लगा सीआरएम पे मैं कर सकता हूँ. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है. बट अभी जैसे मैंने बोला ऑलरेडी अभी मुझे बैंकिंग केस के ऊपर करना है, तो स्टडी ऑन सीआरएम ऑफ बैंकिंग सर्विसेज. बट अगेन जैसे मैंने बोला
और चीजें ऐड कर सकते हो। अभी स्टडी ऑफ सीआरएम, स्टडी ऑन सीआरएम ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन थाने सिटी, या फिर जहां पे भी तुम रहते हो, कल्याण, डोंबिवली या वॉट एवर द एरिया यू विल प्रेफर, स्टडी ऑन सीआरएम ऑफ बैंकिंग सर्विस इन थाने सिटी। बट अगेन इसको हम और स्पेसिफिक कर सकते हैं, स्टडी ऑन सीआरएम ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन थाने सिटी विद रेफरेंस टू यस बैंक। अभी मुझे जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, अभी थाने में शायद यस बैंक है नहीं है वो तुम फाइंड आउट करो। तो जो थाने में बैंक है जिसके ऊपर तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल सकता है या तुम्हें लगता है, तो वो बैंक तुम नाम डाल सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन मेक योर टॉपिक। और मैं वापस बोल रहा हूँ, प्लीज कॉपी पेस्ट के भरोसे मत रहो, तुम खुद का थोड़ा दिमाग लगाओ और ऐसा कोई भी एरिया एक्सप्लोर करो, उससे रिलेट करो और फिर कुछ तो एक ओरिजिनल टाइटल बनाने का ट्राई करो। कि जितना ओरिजिनल और जितना तुम लोग अपने हिसाब से स्पेसिफिक बनाओगे, उतना अच्छा चांसेस है इंप्रेशन क्रिएट करने का जो एक्सटर्नल एग्जामिनर तुम्हारा वाइवा लेगा। ओके, सो आई होप इट इज वेरी क्लियर एंड द सेम प्रिंसिपल वुड बी एप्लीकेबल फॉर एचआर स्टूडेंट्स एंड फाइनेंस स्टूडेंट्स। तुम लोग कोई भी एक एरिया एक्सप्लोर करो, वो एरिया में से स्पेसिफिक टॉपिक लो और फिर उसको इससे रिलेट करके तुम्हारा एक फाइनल टॉपिक बना। ठीक है, अभी हो गया टॉपिक। अभी ये है स्ट्रक्चर विच इज गिवन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, इट इज एज पर दैट गाइडलाइन। टोटल कुछ भी हो जाए तुम्हें 5 चैप्टर में ही प्रोजेक्ट खत्म करना है, दैट इज अराउंड 80 to 100 पेज। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे बैकग्राउंड क्या है, प्रोफाइल ऑफ द स्टडी एरिया क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब इंक्लूड होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी में ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंस, सिलेक्शन, सैंपल साइज और चैप्टर 3 लिटरेचर रिव्यू। ये सब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चैप्टर के नाम है और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। फिर चैप्टर 4 है डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो उसमें आगे जो तुमने डेटा फाइंड आउट किया है उसका ग्राफ, पाई चार्ट, पाई डायग्राम, उसका इंटरप्रिटेशन। और फाइनली कंक्लूजन एंड सजेशन, रिकमेंडेशन अगर कुछ रहेगा तो। और फिर उसके बाद भी एंड में रहेगा बिब्लियोग्राफी एंड वेबलोग्राफी और अपेंडिक्स। बिब्लियोग्राफी मतलब जो भी तुमने हार्ड कॉपी रेफर किया है, मतलब बुक्स, मैगजीन, जर्नल्स। और वेबलोग्राफी मतलब जो जो वेबसाइट्स तुमने विजिट किया है वो फाइनली तुमको एक्नॉलेज करना है, मेंशन करना है तुम्हारे प्रोजेक्ट में कि यहाँ से हम लोग को ये सब डेटा मिला। आई होप इट इज क्लियर नाउ। वर्किंग टाइटल इंपॉर्टेंट है, वो टाइटल फिनिश होने के बाद मुझे इस तरह से ये 5 चैप्टर में करना है। तो आई वाज थिंकिंग कि हाउ आई कैन मेक इट मोर सिंपलर। तो अभी जैसे मैंने बोला, ये सब होने के बाद मतलब और तुम्हारे 3-4 पेज है, इंट्रोडक्शन पेज, एक्नॉलेजमेंट, डिक्लेरेशन, वो सब मैं बाद में शेयर करूंगा, बाद में बता दूंगा। तो जब मेरा इंडेक्स हो जाता है तो उसके बाद जो प्रिफर्ड पेज है, मतलब चैप्टर नंबर 1 के पहले भी एक पेज होता है जिसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव समरी। तो अभी माय टाइटल इज, इसके ऊपर ही मैं एग्जीक्यूटिव समरी करूंगा। ठीक है, यही टाइटल के साथ आगे बढ़ते हैं। A study on consumer satisfaction of ride sharing services in Thane city with reference to Uber mobile app। तो ये मेरा अभी इसके ऊपर मुझे एग्जीक्यूटिव समरी करना है। तो एग्जीक्यूटिव समरी को एब्स्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं या कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करते हैं उनको भी पहले एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना। तो ये एब्स्ट्रैक्ट तुम लोग जो करोगे तो मिनिमम 20 या 25 to 30 लाइंस में होना चाहिए। और एक्चुअली इसका समरी क्या है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। क्यों आफ्टर द कंप्लीशन? क्योंकि तुम्हें समराइज करना है। मतलब तुमने अभी ये टॉपिक लिया, इसके बारे में सोचा, फिर इसके बारे में डेटा फाइंड आउट किया, क्वेश्चनर बनाया, डेटा कलेक्ट किया, इंटरप्रेट किया, कंक्लूजन, फाइंडिंग। तो तुम जो भी तुम्हारा फाइंडिंग है वो उसको समराइज करना है। क्यों समराइज करना है? क्योंकि देखो अभी कोई भी जब आता है तो वो पूरा 80 पेज एक साथ तो नहीं पढ़ सकता। बट अगर कोई तुम्हारा प्रोजेक्ट देखता है तो वो एग्जीक्यूटिव समरी से उसको आइडिया आ जाएगा, अच्छा ये प्रोजेक्ट में ये है, ये इंक्लूड किया है, इसका ये फाइंडिंग है और इससे ये पता चला है। तो ये सब तुम एग्जीक्यूटिव समरीज में तुम्हारा जो भी पूरा टॉपिक है फाइनल है वो उसको फाइनलाइज कर दोगे। तो ये रहेगा चैप्टर नंबर 1 के पहले एग्जीक्यूटिव समरी। तो इसलिए ये हमेशा स्टार्टिंग में ही मत पूरा कंफर्म कर देना, इसको चाहिए तो स्टार्ट करके देखना और फिर तुम्हारा जो प्रोजेक्ट होता है उसके हिसाब से उसमें चेंजेस कर देना। ठीक है, फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में क्या क्या इंक्लूडिंग, तो इसलिए मैं अभी इंडेक्स वाइज जाता हूँ। इंडेक्स में बता दो तुम लोग किस तरह से टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। अभी हम लोग यही टॉपिक लेते हैं और इसको अगर मुझे इस पे प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं कैसे करूंगा। तो पहला मेरा चैप्टर 1 रहेगा, दैट इज अराउंड 15 to 20 पेजेस प्रेफरेबली। अगर मेरा ये टॉपिक है तो चैप्टर 1 में मैं क्या क्या इंक्लूड कर सकता हूँ। तो 1.1, 1.2, 1.3 ऐसा तुम्हें ये देना है, यू कैन से चैप्टर का नाम, और फिर उसके हिसाब से क्या क्या इंक्लूड है वो बताना है। तो जैसे अभी 1.1 में, हाँ इसमें पहला है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब विद रेफरेंस टू प्रॉब्लम। अभी इसमें और एक क्वेश्चन है, अगर तुम कोई भी टॉपिक चूज करते हो तो हमेशा इसका आंसर याद रखना है, व्हाई दिस टॉपिक। मतलब वाइवा में भी या फिर तुम्हारा प्रोजेक्ट गाइड भी या फिर कोई भी जनरली तुम्हें पूछता है अरे ये टॉपिक क्यों लिया या व्हाई दिस टॉपिक। सो यू शुड ऑलवेज हैव द आंसर रेडी कि व्हाई आई एम चूजिंग दिस टॉपिक।
because this is my area of interest, because this is I want to work on, because this is what I feel is a current trending topic, या this is what I feel is the latest topic, इसलिए मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ। अभी जैसे अगर मुझे पूछा जाए कि मैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ऑफ राइड शेयरिंग सर्विस इन थाने क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आइडेंटिफाई करना है थाने में जो लोग राइड शेयरिंग सर्विस यूज कर रहे हैं वो कितने सेटिस्फाइड है। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली उबेर बोला हूँ, बट अगर मुझे कंपेयर करना है ओला के साथ वैसे भी हो सकता है, तो तुम्हें वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जाता है कि तुम लोग ये टॉपिक क्यों चूज कर रहे हो। तो ये टॉपिक के हिसाब से तुम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो। 1.1 में कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के बारे में लिख सकते हो, 1.2 में राइड शेयरिंग सर्विसेज स्पेसिफिक थाने सिटी में लिख सकते हो, नंबर ऑफ प्लेयर्स प्रेजेंट, मतलब थाने सिटी में ऐसे कितने राइड शेयरिंग सर्विसेज प्लेयर्स अवेलेबल है, करंट सिनारियो क्या चल रहा है। 1.5 1.6 भी तुम खुद से भी ऐड कर सकते हो अगर तुम्हें कंपैरिजन करना है या फिर तुम्हें कोई लगता है और टॉपिक में इसमें ऐड कर रहा हो, तो ऐसा तुम्हारा एक फर्स्ट चैप्टर रेडी हो जाएगा जो अराउंड 15 to 20 पेजेस का होना चाहिए। फिर आता है चैप्टर नंबर 2 दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें फर्स्ट तुम्हें स्टार्ट करना है विद द ऑब्जेक्टिव्स। अभी ऑब्जेक्टिव्स मतलब प्रेफरेबली 3 ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि या फिर ज्यादा से ज्यादा 4, क्योंकि 5 या 6 हो जाता है मतलब तुम्हारा प्रोजेक्ट तो होगा 80 to 100, 5-6 मतलब तुम्हारा 150-200 का तो प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है, या फिर तुम कोई थीसिस तो नहीं लिख रहे हो, तो तुम्हें इसलिए 3 ही रखना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा 4 अगर होता है तो। अगर ये तुम्हारा खुद के वर्ड में होना चाहिए, ऐसा कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं। मतलब अभी ये मेरा टॉपिक है, तो अभी सपोज अगर ये मेरा टॉपिक है तो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ राइड शेयरिंग सर्विसेज इन थाने सिटी। तो फर्स्ट मेरा ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि लोगों का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है राइड शेयरिंग सर्विसेज। सेकेंड, द मोस्ट प्रिफर्ड मोड ऑफ राइड शेयरिंग, मोस्ट प्रिफर्ड मोड या ब्रांड ऑफ राइड शेयरिंग सर्विसेज इन थाने सिटी। मतलब जब राइड शेयरिंग सर्विस का होता है तो लोग कौन से इसको ज्यादा यूज करते हैं, ओला यूज करते हैं, उबेर यूज करते हैं, या जो अपकमिंग राइड शेयरिंग सर्विस है उसको यूज करते हैं। तो ये तो ऐसे तुम लोग को खुद से थोड़ा बहुत, मतलब जब तुम इंट्रोडक्शन में फाइंड आउट करोगे ना तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, अच्छा ये प्लेयर्स है, ये लोग इतने सालों से है, इतने सालों से लोग ने थाने में सर्विस दे रहे हैं, तो उससे तुम्हें आइडिया आ जाएगा। तो ये सब पढ़ने के बाद तुम अपना खुद का एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म कर लिया, फिर उसके बाद स्कोप ऑफ द स्टडी, मतलब तुमने इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहे हो, क्योंकि अभी ये देखो अगर अपना ये भी टॉपिक है तो हम उसमें सब तो इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि 80 to 100 पेज ही करना है। तो तुम क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड करने वाले हो, मतलब इसका क्या क्या एंगल से ये टॉपिक को देखने वाले हो। मतलब इसमें राइड शेयरिंग सर्विसेज का प्रमोशन कैसे होता है, मार्केटिंग क्या है, और फिर लोग कैसे उसको प्रेफर करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं, तो ये सब मैंने उसमें इंक्लूड किया। तो ये मेरा हो गया स्कोप। फिर लिमिटेशन, मतलब कोई भी जब रिसर्च करता है तो उसको हमेशा लिमिटेशन फेस करना ही पड़ता है। ऐसा बहुत रेयरली रहेगा कि किसी ने रिसर्च वर्क किया और उसको कोई भी लिमिटेशन फेस नहीं करना पड़ा। लिमिटेशन मतलब सपोज अभी टाइम का लिमिटेशन हो सकता है, क्योंकि अभी तुम लोग को एक डेडलाइन दिया रहेगा, इतने दिनों में या इतने हफ्तों में या इतने महीनों में तुम लोग को प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो टाइम फ्रेम नहीं है, क्योंकि इतने जल्दी इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिलना है, या फिर डेटा कलेक्शन में प्रॉब्लम हो गया, लोगों ने बराबर से क्वेश्चनर में भरा, या फिर लोगों ने जितने टाइम पे इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था वो नहीं दिया। तो ये सब तुम्हारे प्रोजेक्ट के हो सकते हैं लिमिटेशन। फिर हो गया सिग्निफिकेंस, फिर डेटा कलेक्शन। अभी डेटा कलेक्शन के बारे में मैं बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, एक अलग से मैंने वर्ड फाइल बनाया उसमें डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ये अगेन बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर सैंपल साइज, फिर हाइपोथेसिस। अगेन हाइपोथेसिस भी बहुत टेक्निकल है। हाइपोथेसिस मतलब सिंपल लैंग्वेज में एक तरह का एजम्पशन है, वो भी अगर तुम्हें इंक्लूड करना है तो इसमें तुम गाइड का ज्यादा हेल्प लेना, क्योंकि खुद से शायद हाइपोथेसिस फ्रेम करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो वो तुम डाल सकते हो। और फाइनली टेक्निक्स एंड टूल्स, ये भी मैं बाद में जब मैं वर्ड फाइल शेयर करूंगा तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हो गए मेरे पहले 2 चैप्टर। तो अभी कितना हो गया, अराउंड 21 to 35 पेजेस, सॉरी 35 to 40 पेजेस का मेरा ये चैप्टर हो जाना था। पहले 2 चैप्टर एटलीस्ट इतने पेजेस में हो जाना चाहिए। फिर आता है चैप्टर नंबर 3 दैट इज लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अगेन ये भी मैं बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अभी इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। फिर चैप्टर नंबर 4 है डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। अगेन मेरा लिटरेचर रिव्यू कितना होना चाहिए, 15 to 16 पेज, तो मेरा हो गया 52 पेजेस तक। फिर चैप्टर 4 है डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन प्रेजेंटेशन। इसमें आएगा ग्राफ, पाई चार्ट्स, उसका इंटरप्रिटेशन, और अगर कोई कोरिलेशन आ रहा है तो ये ज्यादा से ज्यादा 10, 12 या 15। और फाइनली आता है कंक्लूजन, सजेशन, जो सब खुद से सब लिखना है, फाइंडिंग, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन। और अभी 66 ऑनवर्ड्स क्यों लिखा है, क्योंकि किसी किसी का 78 पे खत्म हो जाएगा, किसी का 80 पे खत्म होगा, किसी का 82 पे खत्म हो सकता है, किसी का 85 पे खत्म हो सकता है। तो इसलिए 66 ऑनवर्ड्स तुम लोग के टॉपिक के हिसाब से और डेटा मिलता है उसके हिसाब से। और फिर फाइनली आएगा अपना बिब्लियोग्राफी,
बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, बिब्लियोग्राफी मतलब क्या, जो भी तुमने हार्ड कॉपी रेफर किया है, बुक्स रेफर किया है, जर्नल, मैगजीन, वो सब इंक्लूड करना है। बिब्लियोग्राफी मतलब जो जो वेबसाइट्स विजिट किया उसके बारे में तुम्हें रेफरेंस एक्नॉलेज करना है। और अपेंडिक्स मतलब कोई भी सपोर्टिंग मटेरियल, मतलब कोई एक्रोनिम यूज किया है, पाइड, टेबल, चार्ट या क्वेश्चन है, वो सब तुम्हारा अपेंडिक्स में आ जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ कि जितना तुम लोग का जो भी प्रोजेक्ट है, राइट फ्रॉम चूजिंग अ टॉपिक, फिर चैप्टर नंबर 1 to 5, और कैसे तुम इसको फिर अराउंड 80 पेजेस तक लेके खत्म कर सकते। तो ये हो गया अभी बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसके तुम लोग को आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू फिनिश योर प्रोजेक्ट। अभी इसमें थोड़ा और डिटेलिंग में आई विल बी एक्सप्लेनिंग, एज आई टोल्ड यू, आई विल बी शेयरिंग वन वर्ड फाइल, जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग दैट। अभी ये तुम लोग भी बना लेना, तुम लोग के खुद के डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे या मोबाइल में। दैट इज डेटा बैंक, प्रोजेक्ट डेटा बैंक। व्हाई प्रोजेक्ट डेटा बैंक? बिकॉज ये जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये एक दिन में, एक हफ्ते में, 10 दिन में या इवन एक महीने में भी खत्म होने वाली चीज नहीं। इसको टाइम लगता है, तो हम लोग इस पे कंटिन्यूसली काम करते हैं, प्रोजेक्ट गाइड से बात करते हैं, चेंजेस करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन मिलता है, फिर हमेशा उसको टाइम लगता है। तो तुम एक अपना वर्ड फाइल बना लो प्रोजेक्ट डेटा बैंक के नाम का, और उसमें स्टार्ट कर दो एक एक चीजें लिखना। जैसे कि पहले तुम लोग ने, जैसे मैंने बोला, चैप्टर 1 के पहले एग्जीक्यूटिव समरी रहेगा, जो 20 से 25 लाइन का रहेगा या 30 लाइंस। फिर चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, तो जिसमें बैकग्राउंड या हिस्ट्री, जैसे मैंने अभी टॉपिक बताया राइड शेयरिंग के बारे में, उसके बारे में मैंने लिखा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में लिखा। स्टडी एरिया मतलब कौन सा रेलेवेंट एरिया, तुम किसके ऊपर काम कर रहे हो, मतलब तुम्हारा जो स्टडी है वो स्पेसिफिक कौन से इस पे है, मतलब सेटिस्फेक्शन पे था तो फिर उसका कौन सा एंगल है, मार्केटिंग एंगल पे कर रहे हो, इकोनॉमिक एंगल पे कर रहे हो, कल्चरल एंगल्स पे कर रहे हो, वो स्पेसिफिक एरिया, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्सेप्ट। तो ये सब चीजें तुम इंक्लूड करोगे चैप्टर नंबर 1 में। अब इसमें भी मैं इसमें थोड़ा और बताता हूँ कि अगर तुम लोग को सपोज अभी गूगल पे सर्च करना है, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स गूगल पे जब सर्च करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, दैट इज कीवर्ड्स। एग्जैक्टली क्या कीवर्ड्स डालना है, अभी मैं जस्ट एग्जांपल बताता हूँ। तो सपोज राइड शेयरिंग सर्विसेज का मीनिंग, ठीक है, अभी राइड शेयरिंग सर्विसेज का मीनिंग, अभी दिस इज गेटिंग, अभी इसमें से मैं कौन सा ढूंढूं, इसमें मुझे लगता है जहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने का चांसेस है। तो अभी मैं यहाँ पे आया, दैट इज ऑन दिस वेबसाइट। सो व्हाट यू टू डू इज, वंस यू विजिट अ पर्टिकुलर वेबसाइट, तो वो वेबसाइट पे तुम जब विजिट करते हो तो उसके बारे में, जैसे मैंने जो वर्ड फाइल में शेयर किया है कि उसका डेट वाइज, उसका लिंक, वो क्या करना है तुम लोग को, सेव करना है जहाँ पे वो अपलोड होगा। तो उस पे क्या होगा, तुम डेट वाइज जब काम करते हो, आई थिंक इट्स टेकिंग टाइम, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है, इसको टाइम लगता है। तो तुम जो जो विजिट कर रहे हो वेबसाइट, वो वेबसाइट का लिंक सेव कर लेना, और वो सेव करने के बाद उसमें डेट डाल देना। अभी व्हाट इज राइड शेयरिंग मैंने देख लिया, थोड़ा तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है क्या है। राइड शेयरिंग इज अरेंजमेंट ट्रांसपोर्टेशन, द टू बिगेस्ट राइड शेयरिंग कंपनी आर उबेर एंड लिफ्ट, द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन, ये बेसिक चीजें हैं, ये मैं अपने इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ। मैंने कंट्रोल सी किया, तो स्टॉप शेयर, मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं वर्ड फाइल में जाता हूँ, अपने डेटा बैंक में, अपने डेटा बैंक में गया, यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा था तो लिंक्स कुछ ऑलरेडी है, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मैंने विजिट किया था जहाँ पे मुझे लगा अरे डेटा इसका बहुत अच्छा है, और मैंने आज का डेट डाल दिया, एंड तो मैं आज के लिए यहाँ पे विजिट किया और ये इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छा लगा। अभी ये इन्फॉर्मेशन में से मैं अपने इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला तुम लोगों से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तुम लोग को इसमें से इंफॉर्मेशन निकालना है। तो अभी ये थोड़ा मुझे इंफॉर्मेशन मिला कि इसमें क्या क्या आता है, इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, और इसने ये आर्टिकल में क्या क्या मेंशन किया है। तो इसमें से वैसे का वैसे कॉपी पेस्ट नहीं, इसमें से तुम लोग को इंट्रोडक्शन टाइप करना स्टार्ट करना है। राइड शेयरिंग इज वन वे ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें ये है, और बिगेस्ट अभी उबेर और लिफ्ट, ये एग्जांपल दे रहा। तो ऐसा तुम लोगों ने एक आइडेंटिफाई कर लिया, ये थोड़ा बहुत तुमने सर्च किया, थोड़ा तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिला, एक दिन काम किया, फिर दूसरे दिन वापस काम करते हो, तो लिंक टू, वापस डेट डालो, लिंक टू कॉपी पेस्ट करो जो तुम्हारा लिंक है जिसपे तुमने काम किया है, फिर डेट डालो। तो ये फाइनल क्या होता है, एक तो ये अपने को बिब्लियोग्राफी में काम में आएगा, और बाद में अगर कल जाके मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, फिर क्रॉस चेक करना है, तो मेरे पास लिंक भी रेडी है। तो बहुत बार बच्चे जस्ट टाइम पास में कॉपी पेस्ट करते हैं और बाद में उनको लिंक भी नहीं मिलता है और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलता। तो जब तुम्हारा डेटा बैंक रेडी है,
तो तुम्हें तभी के तभी सब आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पे मेरा लिंक है, मैंने कभी सर्च किया था, मैंने उसमें से क्या इन्फॉर्मेशन निकाला था। तो दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 1 पे, जो तुम्हें बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। अभी चैप्टर नंबर 2 दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो अभी जैसे मैंने बोला, मैंने चैप्टर 1 फिनिश कर लिया, मुझे 15-20 पेज हो गए। अभी मेरे ऑब्जेक्टिव्स जो मुझे डेटा मिला है उसके ऊपर से मैं फ्रेम करूंगा, मतलब मेरा क्या डेटा है, मैंने क्या सोच के ये टॉपिक लिया था, तो सोचने का मेरा ये ऑब्जेक्टिव था ये टॉपिक लेने का। तो वैसे तुम्हारे वर्ड्स में लिखना है। स्कोप, अगेन क्या क्या चीजें तुम इंक्लूड कर रहे हो और क्या नहीं इंक्लूड कर रहे हो। तो जो जो चीजें स्पेसिफिकली इंक्लूड कर रहे हो वो तुम्हारा हो जाता है स्कोप। लिमिटेशन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, व्हाट इज लिमिटेशन। अभी डेटा कलेक्शन, दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी। अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। तुम लोग को प्रेफरेबली, जो भी तुम अभी प्रोजेक्ट कर रहे हो या रिसर्च वर्क कर रहे हो, प्राइमरी डेटा पे ही करना है। आई होप बाय नाउ एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इज अ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, जहां पे तुमने खुद से कलेक्ट किया, मतलब मैंने क्वेश्चनर बनाया, या फिर मैंने इंटरव्यू लिया, या फिर मैंने ऑब्जर्वेशन, मैंने वहां पे विजिट किया वो जगह पे, और फिर मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला। और सेकेंडरी मतलब जो हम लोग अभी नॉर्मली करते हैं गूगल पे, या फिर जो रेडीमेड इजीली अवेलेबल है बुक्स में, वो हो गया सेकेंडरी। अभी प्राइमरी प्रिफरेबली ही करना चाहिए, क्योंकि तुम लोग के जो चैप्टर भी डिजाइंड है, जैसे चैप्टर नंबर 4 डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, क्योंकि अगर तुमने प्राइमरी नहीं किया तो तुम डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे। अभी इसमें कुछ स्टूडेंट का क्वेरी आता है, जो लोग टेक्निकल सब्जेक्ट है उनके लिए सेकेंडरी। हाँ, अगर बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसे मेजोरिटी ऑफ द केस फाइनेंशियल मार्केट या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टूडेंट के साथ बहुत बार होता है कि उनको प्राइमरी डेटा मिलना मुश्किल है। तो बहुत ही रेयर केस में अगर तुम्हारा टॉपिक ही वैसा है और तुम्हें ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो सेकेंडरी डेटा पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेजोरिटी ऑफ द केस, जो लोग को, जितने लोग को भी पॉसिबल है, इवन बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मार्केट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, वो लोग भी ट्राई करो प्राइमरी पे। अगर नहीं मिलता तो सेकेंडरी करो। सेकेंडरी करने से गलत हो जाएगा ऐसा नहीं होता है, बट फिर काइंड ऑफ स्कोप कम हो जाता है। बट अगर तुम्हारा टॉपिक ही वैसा है तो सेकेंडरी करो। और बीएमएस स्टूडेंट्स को तो बहुत सारा स्कोप है, तो वो लोग ने तो प्राइमरी ही करना चाहिए, क्योंकि उनको ये रहता है। और सैंपल साइज अगेन इट डिपेंड्स, तुम अपने गाइड से पूछ लो, तुम्हारे टॉपिक पे देखो। प्रिफरेबली 100 होना चाहिए। अगर 100 नहीं होता है तो 10 या 20 नहीं चलेगा, मतलब बहुत 10, सिर्फ 10 लोगों को पूछा और 20 लोगों को पूछा ऐसा नहीं। इंटरव्यू 2-3 लोगों का चल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑब्जर्वेशन तुम लोग खुद के हिसाब से। तो सैंपल साइज तुम्हारा टॉपिक और गाइड को पूछ के एक फाइनल फिगर करना, मतलब इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 100 ही होना चाहिए, 50 होना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक रहेगा और तुम जिसको ढूंढोगे या लोग मिलेंगे उसके ऊपर से रहेगा। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 2। अगेन सेम, तुम्हें जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है गूगल पे जाओ, टाइप करो, डेट वाइज लिंक सेव करो, और फिर वो तुम्हें काम में आएगा। फिर आता है चैप्टर नंबर 3, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत आई फील इज अ नेग्लेक्टेड वन, बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज लिटरेचर रिव्यू या फिर ROL। तो अभी इन सिंपल वर्ड व्हाट इट इज, अ क्रिटिकल रिकैप ऑफ व्हाट हैज already been researched on a topic. अभी what even by literature? Literature means some written work या some superior work which is already existence. मतलब तुम जो भी अभी टॉपिक ले रहे हो, तो ना तुम पहली बार ले लो, ना तो मतलब ना ये ऐसा टॉपिक जो किसी ने पहली बार लिया है, ना ये ऐसा टॉपिक जो कोई आखिरी बार लेगा। इसके पहले भी तुम्हारे टॉपिक के बारे में बात की गई और इसके बाद भी तुम्हारे टॉपिक के बारे में बात की जाएगी। तो तुम्हारा ऑलरेडी जो टॉपिक है उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो तुम्हें देखना है, तो उसको बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। अभी वो कहाँ मिलेगा तुम्हें? ऑब्वियसली रिसर्च पेपर्स तुम लोग को ढूंढने हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स उसके बारे में ढूंढने हैं, जर्नल्स उसके बारे में ढूंढने हैं, वेबसाइट्स देखने हैं कि तुम्हारा जो टॉपिक है उसके बारे में लोगों ने पहले क्या क्या बोला है और क्या क्या नहीं बोला है, और तुम क्या क्या उसके बारे में ऐड कर सकते हो। अब इसका रीजन क्या है? पहले तो फाइंड आउट योरसेल्फ व्हाट्स ऑलरेडी नोन ऑफ द टॉपिक। तो जब तुम लिटरेचर रिव्यू करते हो तो तुम्हें ऑलरेडी पता चल जाता है कि भाई ये टॉपिक के बारे में इतना इतना इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है। फिर दूसरा, टू गिव योर रीडर क्रिटिकल ओवरव्यू ऑफ व्हाट यू फाउंड, और फिर उसके बाद तुम ढूंढते हो। अभी फॉर एग्जांपल मैं जब सर्च करूंगा तो मेरी सोच अलग है, मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, कोई दूसरा पर्सन सर्च करेगा उसकी सोच अलग है, वो कोई और इन्फॉर्मेशन निकाले। तो हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है, उस तरह से तुम फाइंड आउट कर सकते हो। फिर थर्ड फाइनली, जो बहुत मेन का रीजन है हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं, दैट इज गैप। तुम्हारे जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसमें क्या गैप है, क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि तुम जब इतना डेटा मिलता है तुम्हें, तो तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा आइडिया आ जाता है जो बहुत लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है, या फिर वो कभी किसी ने वो टॉपिक पे को ये नहीं किया, पिक ही नहीं किया, तो तुम लोग कर रहे हो, तो वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो अगेन मैं अभी बताता हूँ तुम लिटरेचर रिव्यू कैसे ढूंढ सकते हो। आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन, जस्ट अ मिनट।
अभी फॉर एग्जाम्पल आई गो ऑन गूगल अगेन, अभी इसमें मुझे फाइंड आउट करना है, आई होप स्क्रीन शेयर हो गया है, मैं वापस करता हूँ। अभी सिंपल देखो, कभी कभी कीवर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि लोग कीवर्ड पे ध्यान नहीं देते, तो इसके से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे वेबसाइट फॉर रिसर्च पेपर्स फ्री, मतलब मुझे रिसर्च पेपर्स कहाँ पे मिलेंगे, मतलब मेरा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स क्या क्या हुआ है और वो लोग ने क्या क्या फाइंड किया, मुझे वो फाइंड करना है, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ इसमें से कौन सा है। अभी मुझे लगा, देखो 101 फ्री ऑनलाइन जर्नल रिसर्च, मतलब ये ओपन सोर्स है जहाँ पे डेटा इजीली अवेलेबल है और फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। मैंने ढूंढा, मैंने देखा टोटल 100, नंबर 1 पे कोर है, ठीक है। मैं कोर पे गया, ये वेबसाइट ओपन हुआ जहाँ पे मुझे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, डेटा अवेलेबल रहेगा। अगेन ये हम सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये हम लोग सिर्फ इसके लिए देख रहे हैं। तो मैंने अपना नाम डाल दिया, राइट शेयरिंग सर्विसेज। अभी मैं ये सर्च कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे तुम लोग रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। अगेन आई एम मेकिंग वेरी श्योर रेफरेंस, पूरे का पूरा पेपर वैसे का वैसा कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अभी जैसे ऑप्टिमल राइड शेयरिंग रिकमेंडेशन फ्रेमवर्क फॉर कार पुलिंग सर्विस, तो फिर राइड शेयरिंग कार पुलिंग दोनों में कुछ कोरिलेशन है क्या, चलो फाइंड आउट करते। तो मैंने इस पे फाइंड आउट किया। अभी उस पर मुझे क्या मिला, एब्स्ट्रैक्ट। अभी ये किसने किसने लिखा है, उनके नाम है, कभी लिखा है 17 अक्टूबर 2018, ठीक है। अभी इन्होंने इस पे दिया एब्स्ट्रैक्ट, इसके अलावा ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, आई थिंक सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट अपलोड हुआ है, ठीक है। फिर भी ये मेरे काम का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट है जो भी है पूरा पढ़ लिया अच्छे से। तो मैं पहले क्या करता हूँ, सेम लिंक कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, वापस अपने इसमें जाता हूँ वर्ड फाइल में। डेट वाइज जैसे मैंने बोला, यहाँ पे तो बहुत सारे लिंक लगने वाले हैं, क्योंकि तुम लोगों को उतना सारे इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, दैट इज लिटरेचर रिव्यू का। मैंने दिया Ctrl+V, मैंने आज का डेट डाल दिया। अभी ये रेफरेंस के लिए मैं बाद में देख सकता हूँ। अभी जो भी लिंक था मुझे मिल गया है। अभी जो पॉइंट्स है उसमें एक बार मैं पॉइंट्स गो थ्रू करता हूँ, क्या पॉइंट था, और उसको तुम लोग किस तरह से लिटरेचर रिव्यू का फॉर्मेट है वो देखना है, ठीक है। स्टॉप शेयर, शेयरिंग स्क्रीन अगेन। अभी जो सबसे बड़ा गलती सब लोग करते हैं कि वैसे क्या वैसा कॉपी पेस्ट करते हैं, नहीं, तुम्हें ये पढ़ना है, समझना है, और इसमें से 4-5 लाइन खुद के इसमें फ्रेम करके लिखना है। अभी ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कार पुलिंग सर्विस अलाउ ड्राइवर्स टू शेयर राइड्स विद अदर पैसेंजर्स। तो यहाँ पे राइड शेयरिंग और कार पुलिंग, इज इट द सेम और इज इट द डिफरेंट, इससे अगर आपने को पता चल रहा है तो वैसा लिखना है। तो अभी जो फॉर्मेट है किसका, लिटरेचर रिव्यू का, कैसे करना है, पहले मैंने टॉपिक देख लिया, ठीक है। टॉपिक है, फिर मैंने ऑथर का नाम देख लिया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे हजरा कदीर, ठीक है। तो मैं अभी पहले, ये फॉर्मेट है ROL का, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का। ऑथर्स नेम जहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन मिला है। कब बोला था इन्होंने, 2018, मैंने देखा था 2018। स्टेटेड, ऑब्जर्व्ड, सेट, ऐसा लिख सकते हो, स्टेटेड दैट। तो इन्होंने क्या बोला था अभी, इसके बारे में ये बात कर रहे थे, कार पुलिंग के बारे में, ठीक है। तो मैं अगेन वहां पे जाता हूँ, देखता हूँ इन्फॉर्मेशन क्या है। तो कार पुलिंग सर्विस अलॉट, तो अभी ये मैं अभी के अभी फटाफट तो नहीं कर सकता, अभी उसके लिए पहले तुम लोग को अच्छे से देखना पड़ेगा और फिर टाइप करके तुम्हारे वर्ड्स में ये करना पड़ेगा। तो ये हो गया अभी पहला रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। अभी मुझे और ढूंढना है। अभी और एक वेबसाइट है जो तुम लोग को हेल्पफुल रहेगा, जिसपे तुम लोग को बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल सकता है फ्रीली, दैट इज गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर पे जाओ। बट मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ गाइस कि तुम लोग को पूरा का पूरा पेपर वैसे का वैसा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वैसा का वैसा करोगे तो वैसे भी पकड़े जाओगे। अभी राइड शेयरिंग सर्विसेज मेरा टॉपिक है, मैंने गूगल स्कॉलर पे देखा। अभी यहाँ पे राइड शेयरिंग सर्विसेज देखो, पैसेंजर सेफ्टी, ये मैंने अपने टॉपिक में नहीं सोचा था, तो अभी ये मैं अपने ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता हूँ। पैसेंजर सेफ्टी के बारे में मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। पैसेंजर सेफ्टी, आई होप व्हाट आई एम शेयरिंग यू आर एबल टू सी ऑन गूगल।
आई जस्ट क्रॉस चेक अगेन, नहीं तो पता चला शेयर ही नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, गूगल स्कॉलर पे गया, गूगल स्कॉलर में अपना टॉपिक डाला, अभी मुझे ये मिल गया। अभी आई थिंक पीडीएफ यहाँ पे शायद पूरा पेपर में मिल जाएगा। पूरा पेपर क्या है, पैसेंजर सेफ्टी एंड राइट सर्विसेज। कितने लोगों ने लिखा है, 4 लोगों ने लिखा है। कभी लिखा है 2018 में। अभी ये एब्स्ट्रैक्ट है उसका, और अगर अभी मैं डाउनलोड कर लूंगा तो मुझे पूरा पेपर भी मिल जाएगा उनका। अभी पूरा पेपर मिलने के बाद मुझे पूरा पेपर कॉपी पेस्ट नहीं करना है। देखो, डाउनलोड फुल टेक्स्ट एंड पीडीएफ, मुझे इसमें से सिर्फ मेरे टॉपिक से रिलेटेड क्या है वो करना है, ठीक है। तो वापस सेम मैं वर्ड फाइल में जाऊंगा, मेरे डेटा बैंक में जाऊंगा, डेटा बैंक में लिंक कॉपी करूंगा, लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, फिर डेट डाल दूंगा, और फिर उन्होंने क्या बोला था, तो ये उनका नाम था। फिर अभी वो जो भी मिस्टर एबीसी ऑब्जर्व्ड दैट हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो ये अगेन 4-5 लाइन में। तो ऐसे तुम लोग को कम से कम 10-15 पेपर, रिसर्च पेपर देखने हैं, उसमें से आइडेंटिफाई करना है, और फिर तुम लोग को जितना पेज हो सकता है वो। अभी ये तो हो गया सिर्फ क्या, दैट इज इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पेपर्स। अभी जैसे मैंने लिखा है, तुम इसके ऊपर और क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। तो अभी मैं वापस देखता हूँ, राइड शेयरिंग सर्विसेज न्यूज। राइड शेयरिंग सर्विस के बारे में लेटेस्ट न्यूज कुछ मिल रहा है क्या मुझे? गया, इट इज गेटिंग अपलोडेड अगेन। अभी कौन से स्पेसिफिकली, इफ पॉसिबल मोस्ट ऑफ टाइम इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट पे ज्यादा देखना, उस पे हर इंफॉर्मेशन रहता ही। देखो, इकोनॉमिक टाइम्स 18 अक्टूबर 2021, मतलब एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। एटीन अक्टूबर है, तो सोर्स क्या, अगेन वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, फिर पूरा पढ़ लो वो क्या बोल रहे हैं। इसमें कोविड के बारे में वो लोग ने बताया, कोविड के पहले कितना ये था, अभी कोविड के बाद कितना है, उसके बारे में वो लोग बता रहे हैं। तो सेम अपने इस पे जाओ, डेटा फाइल में, उसका लिंक कॉपी पेस्ट करो, आज का डेट डालो, और फिर अभी लिख सकते हो ईटी, दैट इज इकोनॉमिक टाइम्स पेपर 2021 पब्लिश्ड या सेड, जो भी वो आर्टिकल ने बोला था, पब्लिश्ड न्यूज अबाउट, जो भी है तुम लोग उसके ऊपर से लिख सकते। इसमें मेन काम क्या है, व्हाट हार्ड वर्क यू नीड टू डू इज यू नीड टू फ्रेम द सेंटेंस, यू कैन नॉट कॉपी पेस्ट वैसे का वैसा, ठीक है। दिस इज व्हाई द प्रॉब्लम इज। और जैसे अभी मैंने लिखा है लिटरेचर रिव्यू और आरओएल, मोस्ट इंपोर्टेंटली यू कैन नॉट डायरेक्ट कॉपी पेस्ट द लिटरेचर, इंटरप्रेट इन योर ओन वर्ड्स, मेक चेंजेस एज पर योर टॉपिक, एड पॉइंट्स एज पर स्टडी एरिया। जैसे मैंने बोला अभी, जब मैंने ये स्टार्ट किया टॉपिक, तो मैंने पैसेंजर सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा था, बट अभी मैं लिटरेचर रिव्यू जब देख रहा हूँ तो उसके बारे में बहुत सारे बातें हैं। तो शायद वो मेरा ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है कि जब तुम लोग ओला उबेर यूज करते हो, पैसेंजर सेफ्टी का क्या है, कुछ इमरजेंसी हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो सबसे पहले क्या करना है, कॉल करना है, इमरजेंसी का बटन है, क्या है। तो ये सब मैं इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर नंबर 3। अभी आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल, और कोर, जैसे पीडीएफ में मेंशन किया था, कोर टॉपिक है, क्योंकि तुम सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो गूगल में से, तुम खुद का क्वेश्चनर बना रहे हो, क्वेश्चनर अपने रेस्पोंडेंट्स को शेयर कर रहे हो। तो अभी कैसे शेयर कर सकते हो, तो अभी जो मोस्ट ये कोविड के टाइम पे प्रिफर्ड है, क्योंकि फिजिकली सबके जाना पॉसिबल नहीं है, सबसे मिलना पॉसिबल नहीं है, तो गूगल फॉर्म है बेस्ट। गूगल फॉर्म पे इतना अच्छे से और इजीली आ जाता है, नहीं आता तो सीख लो, बहुत आसान है। क्वेश्चनर बना सकते हो, शेयर कर सकते हो, और गूगल पर तो पाई चार्ट वगैरह सब आसानी से मिल जाता है, तो एकदम तुम्हारा काम इजी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रिसर्च पेपर का पाई चार्ट शेयर करता हूँ। जैसे मैंने अभी वहां पे पूछा था कि फॉर एग्जांपल हाउ लॉन्ग यू आर बीइंग एसोसिएटेड विद ओला ऐप, हाउ लॉन्ग यू एसोसिएटेड विद उबर ऐप। तो ये मुझे इंफॉर्मेशन मिला, मेरा सैंपल्स था ऐसा सपोज 100, तो 100 में से अभी देखो 33% इज मोर देन 1 ईयर, और 33% इज 6 मंथ्स, और लेस देन मंथ बहुत ही कम है। तो मतलब 1 साल और 1 साल के ऊपर लोग यूज कर रहे हैं। सो फ्रॉम द, ये अभी इंटरप्रिटेशन हो गया, फ्रॉम द अबाउट डायग्राम it can be observed that around 66.6% है ना, of the
respondents are using the service or associated with the service are using the Uber का कर रहे थे ना, Uber service for at least 1 year or more. तो क्या इंटरप्रिटेशन, तो ऐसा तुम लोग को कम से कम कितने क्वेश्चन रहेंगे, जितना भी तुम लोग का रहेगा 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, उसके हर एक के पाई चार्ट्स बनेंगे या फिर बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, तो उसके हिसाब से तुम लोग को फाइनली इसमें इसका इंटरप्रिटेशन करना है. वंस यू डू द इंटरप्रिटेशन, ऐसा तुम्हारा ये पूरा चैप्टर हो जाएगा. तो ये हो गया चैप्टर नंबर 4. फिर फाइनली आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जिसमें ये फाइंडिंग्स तुम अपने हिसाब से और फिर एलोबरेट कर सकते हो कि तुम्हें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला. फिर सजेशंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जब तुम सजेशन करते हो तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के साथ मैच होना चाहिए. अभी ऑब्जेक्टिव मैंने स्टार्टिंग में फ्रेम किया था, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था और जो मुझे फाइनली स्टडी मिला है वो मैच हो रहा है क्या. मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव था सेटिस्फेक्शन लेवल फाइंड आउट करना, मेरा ऑब्जेक्टिव था पैसेंजर सेफ्टी फाइंड आउट करना, उसके बारे में मुझे क्या क्या मिला और अभी मैं क्या सजेस्ट कर सकता हूँ, ये हो गया. और फाइनल हो गया कंक्लूजन. तो दैट इज इट. बिब्लियोग्राफी अपेंडिक्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड. आई होप इट इज वेरी क्लियर till now what are the topics, what are the points which I have covered. Now one last thing which I need to show you all is, it's almost done now, just a minute. जैसे अपना इंडेक्स हो गया. अभी इसके बाद ये अभी मैं स्लाइड इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि देयर माइट बी अ क्वेश्चन फ्रॉम फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स माइट आस्क कि इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है, हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे, एक हफ्ता पहले पूरा वैसे का वैसा प्रोजेक्ट ये कर देंगे, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है. तो इससे इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि इफ यू सी ऑन योर स्क्रीन इवैल्यूएशन पैटर्न, एज यू कैन सी, जो तुम लोग का सॉफ्ट कॉपी बाद में जो तुम प्रिंट आउट निकालोगे, तो इवैल्यूएशन ऑफ बाउंड कॉपी, जो तुम्हारा हार्ड कॉपी वो 60 मार्क्स का है, और तुम्हारा जो वाइवा होगा वो 40 मार्क्स का है. अभी वाइवा के लिए भी it would be, I might require a separate video to show what answers you can give in Viva and how you can go about preparation for Viva. That I'll be sharing if required afterwards. But ये important है क्योंकि ये तुम्हारा 100 मार्क्स का हो जाता है. अगर तुम इसमें गलती से कम मार्क्स मिलता है या फिर फेल भी होते हो, केटी लगता है, तो वो तुम्हारे रिजल्ट में दिखेगा या बताया जाएगा. तो दैट इज नॉट अ गुड साइन. तो इसलिए तुम लोग को अवॉइड करना है कॉपी पेस्ट करना, क्योंकि तुम जिसको भी अपने प्रोजेक्ट गाइड को बताओगे या फिर जो एक्सटर्नल वाइवा तुम्हारा वाइवा लेने आएगा, उनको इजीली पता चल जाएगा कि ये कुछ मेहनत नहीं किया, वैसे का वैसा कॉपी पेस्ट है, तो तुम लोग के वैसे फिर तुम लोग को वैसा मार्क्स भी वैसे ही दिया जाएगा. तो तुम्हें अवॉइड करना है, अपने को वैसा नहीं चाहिए. हम लोग को पूरा अच्छे से मार्क्स मिलने चाहिए क्योंकि ये अच्छा प्रोजेक्ट है. और ये प्रोजेक्ट अगर अच्छे से होता है तो व्हाट यू कैन डू इज, once you do this project properly, this you can mention in your resume or CV. मतलब अपने रेज्यूम और सीवी में भी मेंशन कर सकते हो कि तुम लोग ने फाइनल ईयर में एक इतना अच्छा टॉपिक किया था जिसके ऊपर तुमने खुद से रिसर्च किया था और ये तुम्हारा ओरिजिनल रिसर्च है. तो जस्ट वन लास्ट आई थिंक स्लाइड, it's giving some technical problem. Yeah, that's it from my side. So the PDF and the guidelines I'll be sharing with you all, maybe in the description or in the comments. And finally, if anyone have any doubt, please share it in the comment box. I'll try and help each and every doubt which will be asked. So I'll try and cover that. This is what I was going to share. जैसे मैंने बोला, ये होगा तुम लोग का अराउंड 60-40, और फाइनली होता क्या है, दैट इज पासिंग स्टैंडर्ड. मिनिमम ई ग्रेड चाहिए, उससे कम मिला तो 80 KT. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैन बी रिवर्स फॉर 80 KT एग्जामिनेशन. अगर पूरा कॉपी पेस्ट है या फिर गाइड कंप्लेन करता है या फिर तुम डेडलाइन फॉलो नहीं करते हो, सबसे लास्ट में सबमिट करते हो, तो ई मिलेगा. या फिर अगर उससे भी बुरा हाल है तो फेल हो जाओगे. और अगर फेल होते हो तो 1 साल रुकना पड़ता है, अगले साल जब वाइवा होगा तभी तुम ये कर सकते हो. तो आई होप यू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस, दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको एकदम सीरियसली करो. फाइनली अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में डालो. आई विल ट्राई एंड सॉल्व ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. So please make sure you do this very